पेपर 1-1 है, मई जून 2024 का। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि a scientist heats a sample of a liquid. The scientist measures the temperature of the sample and plots a graph of the temperature against time. Which statements are correct? तो ये उसने एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, और ये लिक्विड है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, लिक्विड लिक्विड है, ये लिक्विड लिक्विड को वो हीट कर रहा है बेसिकली। तो फिर वो उसने टेम्परेचर को मेजर कर लिया और उसने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, राइट। बिटवीन पॉइंट W and X द टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड द पार्टिकल्स मूव फास्टर। बिल्कुल सही कह रहा है ये, बिल्कुल सही कह रहा है। As you know that the graph is moving upward. What does it mean? If it moves upward, when it moves just like that, which means that the temperature is going to increase. Let's suppose इस पॉइंट पर टेम्परेचर था 1, तो इस पॉइंट पर 2, तो इस पॉइंट पर 3, तो इस पॉइंट पर 4। Am I right? Yes or no? यस। तो तो मतलब ये पॉइंट सही है, क्या कहते हो? ऐसा ही है? जी। जो बात कहीं भी डाउट लगे उसी टाइम रोक देना मुझे। Then point two, between points X and Y, there is no change in the temperature. X and Y की line straight हो गई है, which means that the temperature is not going to change. Like उसकी जो Y axis पर जो value है वो same है। ऐसा ही है भाई? Okay? यस। Because energy is needed to change a liquid into a gas. तो ये point भी सही है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जब कोई भी चीज अपना स्टेट चेंज कर रहा होता है, so the temperature is not going to change, it remains constant when anything is going to change its state. So point 2 be correct है। Point 3, between points Y and Z the particles move further apart because the temperature is going to increase. When the temperature is going to increase, now it becomes gas. Now it becomes gas. So when it becomes gas, so the particles move further apart because as compared to the liquid, जब वो गैस में कन्वर्ट होता है तो पार्टिकल फर्दर अपार्ट हो जाएंगे। सो मींस दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसा ही है? ओके। ओके। A sample of substance X contains iron and sulfur only. Okay, okay. In which row is it possible for both statements about X to be correct? Statement 1, X is a mixture with the ratio 4:7 by mass of iron and sulfur. कह रहा है कि ये मिक्सचर है। आयरन और सल्फर क्या है? कह रहा है कि ये मिक्सचर है। चलो ओके। स्टेटमेंट 2 कहता है कि X is a compound with the ratio of 4:7 by mass of iron and sulfur. 4:7, iron and then sulfur. What's the mass of iron? It's 56. What's the mass of sulfur? It's 32. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम किसी किसी टेबल से, क्या कहते हो? हाँ भाई। जी सर, 2 से। 2 से तो ये हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा? 28। 28 and then 14 and 7। 14 and 7. So means that 2 6 14 and 7 कैसे आया? 28 का हाफ। नहीं, 14 एंड 8। 14 and 8 कैसे हो गया? 28 का हाफ 14 और 16 का हाफ 8। ये ऐसे कह रहे हो? और जी। फर्दर हो सकता है ये? यस, 7 एंड 4। 7 and 4, like 4:7, मतलब कि ये सही कह रहा है। ऐसे ही है? यस। लेकिन हमारा जो Fe का आंसर आ रहा है वो 7 आ रहा है, और जो सल्फर का आ रहा है वो 4 आ रहा है। एम आई राइट? यस। तो ये जो 4:7 कह रहा है ये तो गलत हो गया। ऐसे ही है? जी, उल्टा हो ये गया। जो 4, हाँ ना, ये तो उल्टा हो गया भाई, ये तो उल्टा हो गया। तो हमने जब इसको देखा तो हमारे हिसाब से तो ये यूं है। तो इसको मैंने 2 से डिवाइड करा दिया, या आप एक साथ ही इसको किसी से डिवाइड करा दो, मर्जी है आपकी, मसला नहीं है कोई। पहले ये 28 आया, फिर ये 16 आया, फिर ये 8 आया, फिर ये 14 आया,
और फिर ये 7 आया एंड देन फिर ये 4 आया. फाइनली आई गॉट 7. It 7:4. So due to this, this option is incorrect. X is a mixture with the ratio of 7:4 by mass of iron and sulfur. ये statement सही लग रही है. X is a compound with the ratio of 7:4 by mass of, ये भी statement सही लग रही है. सही है ना. अच्छा, ये क्यों गलत है भाई, ये क्यों गलत है, क्या कहते हो इसमें, ये क्यों गलत है, why, what's the reason कि ये wrong है. And I'm saying कि option B is correct, but I'm asking कि why C and D is incorrect. This is the main question. हाँ जी, क्या कहते हो. They can't react together. बेसिकली अगर देखो, इसने ये कॉन्ट्रीडिक्टरी स्टेटमेंट है यहाँ पर. इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन. व्हाई? बिकॉज in the first side he's saying okay, this is a mixture, and other side he is going to give you a formula. How is that possible कि किसी mixture का कोई formula भी हो सकता है. There is no any chemical formula of the mixture because the composition is not fixed. So this is the reason they are wrong. Okay, समझ आ रही बात. फॉर्मूला दे दिया उसने तुम्हें भाई, ये कैसे हो सकता है. चलो ये तो सही है लेकिन ये नहीं हो सकता. बात समझ रहे हो. ये भी सही है क्योंकि कंपाउंड का फॉर्मूला होता है, बट इट्स इनकरेक्ट. बात समझ आ रही है. तो इसलिए मैंने सी जी. और डी को रॉन्ग कर दिया. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट. Okay. तो मुझे लिखना चाहिए यहाँ पर कि देयर इज नो केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मिक्सचर. as the composition is not fixed. As the composition is not fixed. A chlorine atom Z has a nucleon number of 37. Which row is correct? Which row is correct? Do you know what is nucleon number? Sum of number of protons and neutrons. Good हो गया. So the number of neutrons in Z is what? And the number of electrons in the second shell of Z. So वो कह रहा है क्लोरीन है Z. तो number of electrons in the second shell. तो भाई सेकंड शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, क्योंकि क्लोरीन का जो प्रोटॉन नंबर है वो तो 17 है. क्या कहते हो. क्लोरीन का जो प्रोटॉन नंबर है, क्लोरीन का जो प्रोटॉन नंबर है, यानी कि Z is equal to 17. So what does it mean? कि it would be having 17 electrons, 17 electrons, 17 protons. तो 8 और 8 वाले दो ऑप्शन है आपके पास. ओके, 8 और 8 वाले दो ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि इसके सेकंड शेल में 8 है, ये बात तो पक्की है. थर्ड शेल में 7 है लेकिन सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. चलो मुझे ये तो पता लग गया, या तो बी सही होगा या डी सही होगा. ये दोनों तो गलत हो गए क्योंकि ड्यू टू 7 दे आर रॉन्ग. फिर मैंने अब डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें. तो It would be 20. 37 minus 37 minus 17, that is equal to 20. तो आई वुड से कि डी फॉर डॉक्टर इज करेक्ट. ओके, तो इसमें Yes. 17 प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स नहीं है बल्कि 20 न्यूट्रॉन्स हैं. सो दैट्स व्हाई डी इज करेक्ट. ये तो बहुत आसान है, सोचो जरा. D. इसमें आइसोटोप की बात कर रहा है वो और कह रहा है कि which particles are isotopes of the same element. तो आइसोटोप की डेफिनेशन क्या होती है कि they have the same number of electron and proton and the different number of neutrons. तो आपने कहा D for doctor, right? Y and Z Yes. you are saying. Y एंड Z में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है, प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है, न्यूट्रॉन्स है, क्योंकि एक में 30 न्यूट्रॉन्स है और एक में 28 न्यूट्रॉन्स है. सो इसलिए डी फॉर डॉक्टर इज करेक्ट. गुड हो गया जी. तो आइसोटोप का हम यहाँ पर बता दें कि सेम
electron and proton, but different number of neutron. This is the concept. अच्छा, फिर कहता है कि statements about graphite and silica are given. Which statement is correct? Silicon 4 oxide is silica basically. That is SiO2, right? So SiO2 is found as an impurity in an iron ore. तो सिलिका इम्प्यूरिटी होती है. ओके, चलो आगे भी देख लेते हैं हम. के कह रहे हैं द एंगल्स बिटवीन द एटम्स इन सिलिका एंड ग्रेफाइट आर द सेम. कैसे हो सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? के ग्रेफाइट का तो जो स्ट्रक्चर होता है, इफ यू रिमेम्बर, इट वाज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. और जो सिलिका का स्ट्रक्चर होता है, दैट वाज टेट्राहीड्रल. तो दो अलग अलग ज्योमेट्रीज का बॉन्ड एंगल सेम कैसे हो सकता है? नॉनसेंस. नॉनसेंस बात कर रहा है ये. इट्स रॉन्ग. द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सिलिका एंड ग्राफाइट आर हाई बिकॉज आयोनिक बॉन्ड्स आर. ओ भाई, देयर इज नो आयोनिक बॉन्डिंग. देयर शुड बी कोवैलेंट बॉन्ड. इफ यू रिमेम्बर, हमने जायंट कोवैलेंट डिस्कस किया था, नॉट आयोनिक बॉन्ड डिस्कस किया था हमने. अच्छा, रीजन सही दे रहा है. मतलब ionic bonds are stronger than covalent bonds. I'm not saying that this is wrong. The thing is कि सिलिका में there is no ionic bond. Okay, बात समझ आ रही है मेरी? Yes. So this is wrong again. When graphite acts as a lubricant, the covalent bond between the layers are broken. Oh भाई, covalent bonds कभी भी broken नहीं होते हैं, याद रखिएगा. When something is acting as a lubricant, so you can say that the layers can slide over each other, and when the layers can slide over each other, तो आपको वो एज अ स्लिपरी फील होता है. लुब्रिकेंट, हम उसको एज अ लुब्रिकेंट यूज कर रहे होते हैं. So they are not broken. Why they are saying that the layers are broken? Instead of saying this, they are supposed to write that the layers can slide over each other. When the layers can slide over each other, so then you can say that graphite is used as a lubricant. अच्छा, कह रहा सही है, लेकिन रीजन उसने नॉनसेंस दे दिया. तो ऑब्वियसली डी भी गलत हो गया. तो द वन एंड ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट. उसकी वजह क्या है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए यू मस्ट नो द थिंग दैट वी डिस्कस्ड इन द चैप्टर दैट वाज मेटल. उसमें एक टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन बाय द ब्लास्ट फर्नेस. उसमें जो आयरन वहां से सेपरेट होता है, उसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो आयरन ओर मतलब उसमें सिलिका एज एन इम्प्योरिटी होती है. और उस इम्प्योरिटी को हम रिमूव करते थे कैल्शियम ऑक्साइड से. दैट वाज कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हुआ था और उससे कैल्शियम ऑक्साइड बना था. फिर उस कैल्शियम ऑक्साइड ने सिलिका से रिएक्शन करके स्लैग बनाया था, कैल्शियम सिलिकेट स्लैग बनाया था, जो कि इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हमने वहां से रिमूव कर लिया था. तो मतलब कि ये नॉलेज आपको होनी चाहिए कि यार ऑप्शन ए करेक्ट क्यों है. ओके. बात समझ आ रही है? ओके. Yes. ओके. Okay. क्वेश्चन 6. Statements about empirical and molecular formulae are given. Which statement is correct? The empirical and molecular formulae of a compound are always different. भाई ऐसा जरूरी नहीं है. हमने बहुत दफा ऑब्जर्व किया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है. बहुत दफा, मल्टीपल टाइम्स वी हैव ऑब्जर्व्ड. आपको मैं एग्जांपल अगर दूं, so दिस इज प्रोपेन, राइट? दिस इज प्रोपेन. ये दोनों सेम है. You cannot cancel this. It cannot be simplified basically. तो in this case empirical formula is equal to the molecular formula. तो ये statement के always the same, ये सही नहीं है. They are not always the same. मतलब कि समटाइम ऐसा होता है कि वो डिफरेंट भी आ जाते हैं. और जो है वो मतलब दे आर सेइंग कि ऑलवेज डिफरेंट नहीं आते, समटाइम सेम भी आ जाते हैं. तो ये स्टेटमेंट इनकी इनकरेक्ट है. फिर कहता है कि द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइन दैट इज C2H2 एंड ऑफ बेंजीन आर द सेम. देखो, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा CH और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा CH. अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो यू आर सपोज टू डिवाइड द होल फॉर्मूला बाय द लीस्ट नंबर, बाय द स्मॉलेस्ट नंबर. अब स्मॉलेस्ट नंबर इसमें है ही 2, मैंने 2 से डिवाइड कराया, आई गॉट CH. और उसमें स्मॉलर नंबर है ही 6, तो मैंने जब उसे 6 से डिवाइड करवाया तो आई गॉट CH. अगेन द सेम. तो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं कह सकता हूं कि बी ऑप्शन इज करेक्ट.
बाकी सी और डी क्यों गलत है, क्योंकि सी में कह रहा है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलवेज शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर थोड़ी शो करता है, अगर आपको याद हो वो तो इंपेरिकल करता है। तो ये स्टेटमेंट इनकी इनकरेक्ट है। फिर कहता है कि the empirical formula always show the numbers and types of different atoms in one molecule of a compound. No, empirical formula give this ratio. तो मतलब इन्होंने जम्बल कर दिया है उसको। तो अगर इन चारों में से मैं देखूं तो बेस्ट ऑप्शन इज बी। ओके, बेस्ट ऑप्शन इज बी। मैं सबको मार्क करूं ताकि बाद में जब पेपर भेजूं आपको तो आप इसको बाद में अच्छी तरह से समझ सको कि ये किस तरह से हमने किया था। What is the relative formula mass of aluminium oxide? देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने आपको फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, so obviously you are supposed to know कि what is the chemical formula for aluminium oxide। तो aluminium oxide का फॉर्मूला वैसे क्या होता है? AlO2. Al2O3, that is aluminium oxide। तो aluminium is 27 times 2 and oxygen is 16 times 3। सॉल्व किया तो आंसर आएगा, सॉल्व किया तो आंसर आएगा कितना? आई थिंक सो 102। इट्स एन आइडिया, शायद, मे बी। Yes, sir. 102. Okay, how many ions are there in 16 gram of anhydrous copper sulfate? So copper sulfate जब dissociate होगा, it would give you the two ions that are copper 2 plus and sulfate 2 minus, okay? और इन्होंने आपको मास भी दिया हुआ है इसमें, that is 16 grams। so सबसे पहले you are supposed to find out the moles of copper sulfate, that is 16 over the molecular mass of copper sulfate। अगर आप कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करोगे तो कॉपर का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो होता है 63.5। सल्फर इज 32 एंड देन ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स 4। तो मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास बता दो कि कितना आ रहा है इसका कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास, ताकि मैं पहले इसके मोल फाइंड आउट करूं। जब मेरे पास मोल आ जाएंगे तो फिर मैं मोल को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ आयॉन्स भी आराम से आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो मुझे एमआर बताओ कॉपर सल्फेट का कितना है, फटाफट। 112. 112। और इसके मोल बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है? 0.142. 0.142 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 का आंसर बताओ जरा क्या आ रहा है? तो इसके इस जैसे ही आप इसका आंसर बताओगे तो वो आ जाएंगे बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। और जब मैंने कॉपर सल्फेट को डिसोसिएट करवाया तो मुझे पता लगेगा कि वन कॉपर सल्फेट, 1 mole of copper sulfate gives 1 mole of copper 2 plus and 1 mole of SO4 2 minus, जो कि सल्फेट आयन है। तो पहले तो आप इसका आंसर बताओ, फिर आप जैसे ही आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना ताकि आपको ये पता लग जाए हाउ मेनी आयॉन्स आर देयर इन एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो पहले तो इसका आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है? 8.5 multiplied by 10 to the power 22. 8.5 multiplied by 10 to the power 22 and then multiplied by 2। मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा आंसर? 1.7 multiplied by 10 to the power 23. 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23। 1.7 का तो कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, कॉपर सल्फेट का मास सही बताया है। कहाँ गलती आ रही है? कॉपर इज 63.5 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 टाइम्स 4 इज 64। इट्स 159.5 नॉट 112। इट्स 159.5।
तो जब मैंने 16 को डिवाइड किया 159.5 से, सो आई गॉट 0.1 रादर देन दिस, आई गॉट 0.1003। फिर मैं उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आंसर आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कॉपर सल्फेट का। तो अब मुझे बताइए कि क्या आंसर हो रहा है आफ्टर मल्टीप्लाइंग 0.1003 इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23। यस, क्या कहते हो? Uh, 6.0 multiplied by 10 to the power 22. एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर तो फिर One आंसर आ रहा होगा 1.2 एक्सपोनेंट आगे 23. 23 मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, समझ आ रही है ना बात? Yes. तो भाई इस तरह से आपको मोल के क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं। और ये है आइडिया, नंबर ऑफ आयंस की बात हो या नंबर ऑफ एटम्स की बात हो या किसी की भी बात हो, अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम इट्स सी नॉट ए। तो इसका मतलब ये है कि आप दोबारा कैलकुलेट करो कि क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। 0.1003 मल्टीप्लाइड बाय दिस, या तो आपने मुझे यही गलत बताया है। ये 22 बताया आपने मुझे, सही है ना? ऐसा ही है, 22 बताया, 23 बताया, 22. 622 बताया, और देन मल्टीप्लाई बाय 2 करवाया, तो फिर वो आंसर आ रहा है 10 की पावर 24। इसको जरा एक दफा दोबारा क्रॉस चेक करना जरा कि क्या आंसर आ रहा है इसका। लेकिन मेथड सही है कि हमने मास को पहले एटॉमिक मास से डिवाइड करवाया, फिर हमने उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कराया, सो आई गॉट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फिर हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करवाया क्योंकि कॉपर सल्फेट में देर आर 2 आयंस, द फर्स्ट वन इज कॉपर 2 प्लस एंड अनदर वन इज सल्फेट 2 माइनस। क्या कहते हो? सेम आंसर? So मेरा 23 आ रहा है 10 to the power 23. खैर कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है अभी, बट इट शुड बी सी। दोबारा से कर लो इसको ना, कंफर्म हो जाएगा। मैं भी ट्राई करता हूँ, वेट। 0.1003 times 6.02 exponent 23, so I am getting 6.03, 6.03 exponent 22, then multiplied by 2 would give me 1.20, 1.20 exponent 23, exponent 23। क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये? वेट, Yes. क्वेश्चन नंबर 8 इज ए, सॉरी, ओके हो गया जी, ओके ओके ओके। ऐसा ही था यार, ऐसे ही हम। चलो जी, ओके। ये बताओ जरा क्या होना चाहिए? कंटेन द मोस्ट एटम्स, मोस्ट एटम्स। इसका फॉर्मूला है H2O, इसका फॉर्मूला है CO2, इसका फॉर्मूला है मीथेन दैट इज CH4, इसका फॉर्मूला है हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl। That's तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको मोल्स दिए हुए हैं, आपने करना यह है कि मोल्स को मल्टीप्लाई करवाना है एवोगैड्रोस नंबर से, और फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर आपने देखना है कि इसमें कितने एटम्स हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं। फिर जो भी आंसर आएगा उसको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करा देना। इसमें 3 एटम्स हैं, इसमें 4 एटम, इसमें भी 3 एटम्स हैं। ओके, इसमें भी 3 एटम्स हैं, इसमें 5 एटम्स हैं, और इसमें 2 एटम्स हैं। तो बस आपको करना ये है कि आप 0.5 दिस, 1 एक्सपोनेंट, ना 1 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, 1 multiplied by 6.02 exponent 23,
and 2 multiplied by 6.02x 10 to the power 23, और उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर आपने सबको कैलकुलेट करके देखना है कि इसका आंसर सबसे ज्यादा आ रहा है, दैट वुड बी योर आंसर। अब देख लो आप क्या आंसर आ रहा है इसका, जल्दी से बता दो। हाँ जी। मेरे मेरे अंदाजे से विदाउट कैलकुलेशन, इसको होना चाहिए सी। उसकी वजह यह है कि ये सबसे बड़ा नंबर है, तो जब बड़ा नंबर होगा तो बड़ा आंसर आएगा। कॉमन सेंस। टाइम बचाएंगे हम अपना। ऐसा ही है। जी सर। यस, सो सी आंसर इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट बेसिकली। ये ट्राई करो जरा क्वेश्चन 10। सर ए या बी लग रहा है। The reaction shown all produce hydrogen. Which reaction produces the greatest volume of hydrogen measured at room temperature and pressure? देखो, आपने सबसे पहले कार्बन के मोल कैलकुलेट करने हैं, मोल से मोल रेशो लगाना है, दैट इज 1:1। जब इसका मोल आएगा तो इसको मल्टीप्लाई बाय 24 करोगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। यही काम इसके साथ भी, यही काम इसके साथ भी, यही काम इसके साथ भी। ये सब कुछ करने के बाद फिर आप देखना कि सबसे बड़ा वॉल्यूम किसका आ रहा है, दैट वुड बी योर आंसर। ओके। ओके। हाँ जी। ये देखो जरा। हाँ जी।
ए। इसमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, जिसका आंसर 0.1 आएगा वही सही होगा। तो 1.6 को आपने 40 से डिवाइड कराया तो मोल आया, फिर उस मोल को आपने 400 से डिवाइड करा दिया, लेकिन इसको पहले डीएम क्यूब में चेंज करके, यानी 1000 से डिवाइड करवा के। अगर इसका आंसर 0.1 आ रहा है तो ए सही है, नहीं आ रहा तो फिर सबको चेक करना पड़ेगा भाई। मेथड हमने आपको बता दिया कि ऐसे होगा ये क्वेश्चन। जी सर, इसका 0.1 ही आ रहा है। बस सेट हो गया। 12 देखो जरा। बी। यस, गुड हो गया। ये पेपर मैं भेज रहा हूँ, इसको कर लेना पेपर को। और ये रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ जी शेयर कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग शेयर कर ओके। रहा हूँ मैं।